Hello dear students, in yesterday class we discussed Euclid's division algorithm and HCF by using Euclid's division algorithm. Today we discuss some more examples related with HCF by Euclid's division algorithm. कल हमने जो HCF फाइंड आउट करने के एग्जाम्पल्स देखे थे उसी को रिवाइज करते हुए और एक एग्जाम्पल हम यहाँ सॉल्व करेंगे. Example 1, HCF of 56 and 88 by using Euclid's division algorithm. Now the solution, given numbers 56 and 88. Since 88 is greater than 56, then by Euclid's division algorithm, A equals to BQ plus R, where 0 is less than equals to R is less than B. Now here we put A is equals to 88 and B is equals to 56. मतलब पहले हम 56 और 88 को के लिए डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे. 88 डिवाइडेड बाई 56, 56 इंटू 1 56, 88 minus 56, remainder is 32. So the first equation is 88 is equals to 56 into 1 plus 32. Here remainder 32 is not equals to 0. Therefore again we apply the division algorithm by taking 56 and 32. अब हम 56 को 32 से डिवाइड करेंगे. देन 56 डिवाइडेड बाई 32, 32 इंटू 1 32, 56 minus 32 gives 24. So the second equation is 56 is equals to 32 into 1 plus 24. Again here remainder is 24, which is not equals to 0. So we again apply Euclid's division for 32 and 24. Now 32 is divided by 24. So 32 ones are 24 ones are 24. 32 minus 24 equals to 8. So third equation is 32 is equals to 24 into 1 plus 8. Here remainder 8 is not equals to 0. Then again we apply the division algorithm for 24 and 8. 24 divided by 8, 8 into 3 is 24 and 24 minus 24 0. Then 24 equals to 8 into 3 plus 0. Now here remainder is 0, therefore the last divisor is 8. So HCF of 56 and 88 is 8. Now we take some more examples which is different. Example 2. Verify by using Euclid's division algorithm that the numbers 25 and 81 are co-primes. अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि नंबर्स 25 एंड 81 को प्राइम्स हैं. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द को प्राइम नंबर्स. सो वी नो दैट इफ HCF ऑफ टू नंबर्स आर 1, देन द टू नंबर्स आर को प्राइम. मतलब यदि टू नंबर्स A और B हैं और उनका HCF 1 है, देन A एंड B आर को प्राइम्स. तो फर्स्ट हमको 25 और 81 का HCF फाइंड आउट करना है और यदि उनका HCF 1 होगा तो वो को प्राइम्स होंगे. सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम ऑन 81 एंड 25. So by division algorithm A equals to BQ plus R, where 0 is less than equals to R is less than B. We divide 81 by 25. So 25 into 3 75, 81 minus 75 gives 6. So equation 1, 81 is equals to 25 into 3 plus 6. Here 6 is not equals to 0, which is remainder. So we again apply the division algorithm on 6 and 25. अब हम 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 into 4 24. So 25 minus 24 gives 1. So second equation is 25 is equals to 6 into 4 plus 1. Here 1 is remainder, which is not equals to 0. So again we apply division algorithm on 6 and 1. Now 6 divided by 1. 1 into 6, 6. 6 minus 6, 0. So
6 is equals to 1 into 6 plus 0. Now here remainder is 0. So last divisor is 1. Then HCF of 25 and 81 is equals to 1. Here HCF is 1. Therefore the numbers 25 and 81 are co-primes. Now next application, the HCF of 3 numbers by using Euclid's division algorithm. स्टूडेंट्स अभी तक हमने 2 नंबर्स का HCF यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड आउट किया था. अब हम 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे. एग्जाम्पल 3, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 72, 126 एंड 150. 3 नंबर्स का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख लेते हैं. 150 ग्रेटर देन 126 इज ग्रेटर देन 72. अब हम पहले 2 नंबर्स का HCF डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड आउट करेंगे. नाउ HCF ऑफ 150 एंड 126 बाय डिवीजन एल्गोरिदम A इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन B. तो अब हम 150 को 126 से डिवाइड करेंगे. 126 into 1, 126. 150 minus 126 is equals to 24. So first equation is 150 is equals to 126 into 1 plus 24. अब यहाँ पे रिमाइंडर 24 है जो 0 नहीं है. So again we apply division algorithm on 126 and 24. So 24 into 5, 120. 126 minus 120 equals to 6. So second equation is 126 is equals to 24 into 5 plus 6. Again here remainder is 6 which is not equals to 0. So we apply division algorithm for 24 and 6. 24 divided by 6. 6 into 4 is 24. Therefore 24 minus 24 gives 0. So third equation is 24 equals to 6 into 4 plus 0. Now here remainder is 0. So the last divisor is 6. So HCF of 150 and 126 is 6. अब हम 150 और 126 का HCF 6 आया है. तो अब हम 6 और जो तीसरा नंबर है 72 उनका HCF निकालेंगे. The HCF of 6 and 72 बाई डिवीजन एल्गोरिदम यदि हम 72 को 6 से डिवाइड करें तो 6 इंटू 1 6, 7 माइनस 6 1, नाउ 12 इज रिमाइंडर. देन 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 12 0. नाउ वी कैन राइट 72 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 12 प्लस 0. सो HCF ऑफ 6 and 72 इज 6. अब यहाँ पे हमको दोनों लास्ट वाला जो HCF होता है वो तीनों नंबर्स का HCF फाइनल HCF होता है. सो देयरफॉर HCF ऑफ 72, 126 एंड 150 इज इक्वल्स टू 6. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम जब हमने HCF 150 और 126 का निकाला था तो वो 6 आया और सेकेंड टाइम 6 और 72 का HCF भी 6 आया. इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में दोनों HCF सेम आएंगे. यहाँ पे हमको तीनों नंबर्स का जो HCF होता है वो लास्ट वाला HCF फाइनल आंसर होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब हम न्यू टाइप का एग्जाम्पल लेंगे. HCF of 2 numbers in the form of linear combination of given numbers. If P is the HCF of given numbers A and B, that means HCF of AB is equals to P. So if we can write P is equals to AX plus BY, then this is called the linear combination of HCF in the form of A and B. इट मीन्स यदि हमको A और B 2 नंबर्स दिए गए हैं और उनका HCF P होगा तो HCF P को हम A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में P इज इक्वल्स टू AX प्लस BY के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमको अभी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो एग्जाम्पल 4, फाइंड HCF ऑफ 45 and 27 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम.
express HCF in the form of linear combination of 45 and 27. यहाँ पे हमको 45 और 27 का HCF फर्स्ट फाइंड आउट करना है. By Euclid's division algorithm, divide 45 by 27. 27 ones are 27, 45 minus 27 gives 18. So the first equation is 45 is equals to 27 into 1 plus 18. Now here 18 is not equals to 0. So again apply division algorithm on 18 and 27. 18 divided by 27, 18 ones are 18, 27 minus 18, 9. Therefore second equation is 27 is equals to 18 into 1 plus 9. Here 9 remainder is not equals to 0. So again apply division algorithm on 18 and 9. Then 18 divided by 9 gives remainder 0. 9 into 2, 18. So the third equation is 18 is equals to 9 into 2 plus 0. Here last divisor is 9. Therefore HCF of 45 and 27 is 9. अब हम इस HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे हमने इक्वेशन 1, 2, 3 जो शो किया है उन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे. फर्स्ट जो लास्ट इक्वेशन 3 है उसका यूज़ नहीं करेंगे. सेकंड लास्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन 2, इसमें से हम HCF 9 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट 9 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 81 इंटू 1. 81 इंटू 1 का साइड चेंज कर देंगे. सो 9 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 18 इंटू 1. अब हमको इक्वेशन 1 से 18 की वैल्यू निकाल के नीचे इक्वेशन में रखनी है. फ्रॉम इक्वेशन 1 18 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 27 इंटू 1. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे. 9 इज इक्वल्स टू 27 माइनस इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 18 45 माइनस 27 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1. अब हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर का इंटू 1 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटू 1 के फॉर्म में अब आपको लगेगा 18 इंटू 1 को हमने 18 क्यों नहीं लिखा, 27 इंटू 1 को क्यों नहीं लिखा. उसको उसी फॉर्म में रखना है तभी जा कर के वो लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार होगा. सो 9 इज इक्वल्स टू जो 27 है उसको हम 27 इंटू 1 लिख सकते हैं. सो 9 इक्वल्स टू 27 इंटू 1 माइनस 45 इंटू 1 एंड माइनस माइनस गिव्स प्लस 27 इंटू 1. अब यहाँ पे 27 इंटू 1 इंटू प्लस 27 इंटू 1 ऐड होकर के 27 इंटू 2 हो जाएगा. सो 9 इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2 माइनस 45 इंटू 1. अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करते समय टर्म्स के बीच का जो साइन है वो हमेशा प्लस रखते हैं. सो माइनस साइन हम 1 के साथ लेंगे. 9 इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2 प्लस 45 इंटू माइनस 1. दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ HCF in the HCF of 27 and 45. I think it is clear. इस टाइप के एग्जाम्पल्स को क्लियर करने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड HCF ऑफ 90 and 144 by Euclid's division algorithm. Express HCF in the form of linear combination 144x plus 90y and फाइंड x and y. अब यहाँ पे हमको 90 और 144 का HCF फाइंड आउट करना है और जो HCF आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन 144x प्लस 90y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे HCF. 144 इज ग्रेटर देन 90. देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम फर्स्ट वी डिवाइड 144 by 90. 90 into 1 90. 144 minus 90 gives 54. So the first equation is 144 equals to 90 into 1 plus 54.
अब यहाँ पे 54 नॉट इक्वल्स टू 0 है जो रिमाइंडर है. सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम ऑन 90 एंड 54. Now 90 divided by 54, 54 into 1 54, 90 minus 54 36. So the second equation is 90 is equals to 54 into 1 plus 36. Here remainder 36 not equals to 0. So again we apply division algorithm on 36 and 54. Now 54 divided by 36. 36 into 1, 36. 54 minus 36 gives 18. So the third equation is 54 is equals to 36 into 1 plus 18. Here 18 is not equals to 0. So again we apply division algorithm on 36 and 18. 36 divided by 18. So 18 into 2 is 36. 36 minus 36 0. So the fourth equation is 36 is equals to 18 into 2 plus 0. Here last divisor is 18. So HCF of 144 and 90 is 18. अब हमने HCF फाइंड आउट कर लिया. अब ये जो चार इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3 4, इसमें से फोर्थ इक्वेशन छोड़ के फर्स्ट थ्री इक्वेशन की हेल्प से हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे. फर्स्ट सबसे पहले इक्वेशन 3 में से जो HCF 18 है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे. दैट मीन्स 18 इज इक्वल्स टू 54 माइनस 36 इंटू 1. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3 18 इज इक्वल्स टू 54 माइनस 36 इंटू 1. अब हम इक्वेशन 2 को देखेंगे और वहाँ से 36 की वैल्यू निकालेंगे. अब देखिए इक्वेशन 2 से 36 की वैल्यू 36 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 54 इंटू 1. अब इस 36 की वैल्यू यहाँ हम नीचे रख देंगे. Now 18 is equals to 54 minus in bracket 90 minus 54 into 1 bracket close into 1. अब हम ब्रैकेट के बाहर का into 1 है वो अंदर ले लेंगे. Now 18 is equals to 54 into 1 minus 90 into 1 and minus minus plus 54 into 1. अब यहाँ पे 54 इंटू 1 प्लस 54 इंटू 1 54 इंटू 2. सो 18 इज इक्वल्स टू 54 इंटू 2 माइनस 90 इंटू 1. अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, वहाँ से 54 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. अब इक्वेशन 1 को देखिए. इक्वेशन 1 54 इज इक्वल्स टू 144 माइनस 90 इंटू 1. इक्वेशन 1 से 54 की वैल्यू आई 144 माइनस 90 इंटू 1. अब ये वैल्यू हमको यहाँ नीचे पुट करनी है. नाउ 18 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 144 माइनस 90 इंटू 1, ये हुई 54 की वैल्यू, और इंटू 2 माइनस 90 इंटू 1. अब ये ब्रैकेट के बाहर का इंटू 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 18 इज इक्वल्स टू 144 इंटू 2 माइनस 90 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 90 इंटू 1. अब यहाँ पे माइनस 90 इंटू 2 माइनस 90 इंटू 1 ऐड होकर के माइनस 90 इंटू 3 हो जाएगा. सो 18 इज इक्वल्स टू 144 इंटू 2 माइनस 90 इंटू 3. अब हम इसको सारे टर्म्स पॉजिटिव करेंगे. 18 इज इक्वल्स टू 144 इंटू 2 प्लस 90 इंटू माइनस 3. This is the linear combination of HCF in the form of 144 and 90. अब देखिए HCF को हमने 144 इंटू एक्स प्लस 90 इंटू वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. अब इसको हम दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो x की जगह हमको 2 दिख रहा है और y की जगह -3 है. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3. स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, पर उसको ठीक से पढ़िए, समझिए, तो उसको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे. अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे सॉल्व करिए एज ए होमवर्क. फर्स्ट, फाइंड HCF ऑफ 105 एंड 120. सेकेंड, HCF ऑफ 3 numbers by Euclid's division algorithm 56, 96 and 404. Third question, find the HCF of 15, 18 and 45 by division lemma. And fourth question,
HCF of 54 and 336 and express it in the form of linear combination of 54 and 336. And fifth question is, if D is the HCF of 84 and 26, then find X and Y satisfying D is equals to 384X plus 26Y. ये सारे होमवर्क के क्वेश्चंस आज हमने जो एग्जांपल्स किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है. सो सॉल्व इट केयरफुली. थैंक यू.